only 8 attendees are there. There are only 8, sir. Anybody is having laptop so that I can read the attendees? Yes, sir. Ankur Sharma, Avinash Tiwari, Dharmender, Kavita, Matilal, Menka, Mainapati Mahesh, Ranjita Okay. Sahu. So, Mr. Ankur, press which है Mr. Ankur? अंकुर जी आप गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून सर. हाँ Dobry Jain как дела? Добрый вечер, сэр. हाँ добрый вечер как дела? Хорошо, सर. хорошо. आपने अपना असाइनमेंट जमा कर दिया प्रोजेक्ट? No, sir. Actually, I couldn't follow up the classes in between. अच्छा तो आप अभी 30th लास्ट डेट है. Join the class. हाँ that's why I could see ना Ankur Sharma is not very regularly visible Yes, sir, in the classes. because my office is closed due to a COVID case, so that's why I'm able to join today. Your office? Yes, I mean that is closed for this week due to a COVID case, so I'm in a home quarantine kind of situation. Okay. All right, you take help of other fellow students and complete the assignment and project as soon as possible. Yes, I have to cover up for a few weeks actually. These are universities quality education reasonable fee structure. बाकी लोग म्यूट कर दीजिए. श्रीनिधि. Yeah, sorry sir. ओके अंकुर. और मिस्टर धर्मेंद्र आपने अपना कर लिया है? धर्मेंद्र जी. धर्मेंद्र जी. Yes sir, can you hear me? I can hear you. как дела? I'm fine, thank you sir. I'm not yet speaking Russian. I'm lagging behind quite a lot. I've not yet started the assignment, but I hope to do it. In case I'm not able to do it, probably I will have to, plan for the December examination. Okay, but still you have another 12 to 15 I'm days. trying, sir. Yeah, I'm trying my level best to do in this schedule itself. Somehow, if it is not possible, there will be compulsion to. ओके. और किसी का ऐसा है हमारे स्टूडेंट्स में जो किसी परेशानी की वजह से नहीं कंप्लीट कर पाया है? आप लोगों में से कोई है अभी? और ज़्यादातर लोगों ने तो सबमिट कर दिया है, लेकिन अगर ऐसा किसी को परेशानी हो रही है तो हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं. We will help you certainly. Our fellow students will also help you in the group, and you can also request in case you need more help, maybe from my side. Okay. चलिए तो आज sir the only thing is we need to know if you have received our assignment and project. Okay, I'll just read how many assignments and projects we have received from students. Okay, I'll just read. You just check your name is there or not. Okay. And you have sent it to crul@ignou.ac.in. I have opened the email account. Now I'll read. I have received from Rahul Singh, Rajesh Kumar, Hemant Singh, then Vino S, Jennifer Kuzur, Ankita Upadhyay, then from Shubham Bhardwaj, Bharat Singh, Ravi Kumar,
Mahesh, I have received yours also. Vajesh, Naveen Saini, and My Deep Yoga, something like that. Name I couldn't. Swati Sharma, Gaurav Goswami, Raj Kumar, Naresh Dide, Avinash Tiwari, Siva Kumar, Sabha Fatima, Rohit Sharma. Somebody's name is slot number 24. Priyali, Rashika Sharma, Jackie Khatri, Swaroop Basu, Srinidhi, Hemant, Lakshmi Devi, Mayank Sharma. These are the names. Anuj Chauhan. So these are the names. Saloni Goyal also is there. Anuj Chauhan is there. So in case somebody's name has been missed, so you can tell me. Okay. Or if in case you have sent it to my Shivaji Bhaskar @ignu.ac.in email ID, you may please forward it to crul@ignu.ac.in. I have also received from Manas Malhotra. Okay, so these are Shubham Bhardwaj is there. So these are around 60 assignments have been received in projects, and once we finish our classes online, I'll start looking at the submissions. Okay. So in case if you have any questions to ask, you can ask. Otherwise we will just look into these assignments and projects and we'll solve it. Okay. So in case you have any question, you can ask me. You can also keep a copy and screenshot of your emails you have sent on which date and what time to which email address, in case it is missed, so that you can remind. All right. Okay, is that all right? Hello. Hello. Yes, sir, we can start. Okay. So आप लोग एक notebook ले लीजिए, note the important points of these assignments and projects. Those who have already submitted, it's no problem at all. Those who have not done it, they can still solve it. They have plenty of time. So I'll just quickly tell you once more. So in the assignment ORU 001, the first question is write a brief note on the origin of Russian language and its structure. So in the beginning of the self-learning material, block 1, unit 1, you will find the answer. You can also read more resources from the internet and write according to your knowledge and your taste. It must not be very brief, it must not be very big, around 200 to 250 words, more than enough. But if you still want to write more, you can do it. Second question is write the Russian alphabet in correct order. So all the letters of the Russian alphabet, that is 33 different letters, needs to be written in alphabetic order like we see in Russian. And then the next question is write 5 sentences about you and your family in Russian language. So when you talk about your family, everybody's family is different. So you can write about your family, Maya Simya, which is my family, Maya Simi in my family, Я хочу рассказать вам о своей семье. I want to tell you about my. You can start with like these sentences and talk about your family, or simply by putting the headline Maya Simya, and then you can start. Because in our SLM also we have certain text which actually deals with Maya Simya, and you can also take a clue from there and write. So basically, main idea is that your family, how many members are there, your father, your mother, your sister, your brother, and where do you live, and what do you do, what does your father do, what does your mother do, your sister, your brother,
And then what do you do at home normally? What do you like? Do you like music? Do you like playing something at home all together? And do you like eating all together? What time do you watch television? Do you eat your food? These kind of things, basically. These are very simple sentences, and for all these simple sentences you can make sentences in Russian as well. For example, Maya Simya. Maya Simya, because Simya is a feminine gender word. Maya Simya, my family. Maya Simya, in my family. Maya over Maya Simya, in my family. Moi papa, Maya mama. In case two brothers, dva brata. In case one sister, adna sister. Then you can say that moi papa работает инженером, my father works as an engineer, or any other profession. For mother, you can also Ana учительница, Ana преподавательница, Ana дома хозяйка, she's a homemaker. So these kind of sentences you can make. Then you can say that mi любим смотреть телевизор вместе, we like to watch the television together. So these kind of sentences you can make. Мы живем в одном доме, наш дом находится в Хайदराबाद, for example. ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं फैमिली के बारे में, और 5-10 सेंटेंसेस लिख सकते हैं इसके बारे में. इट विल हेल्प यू टू थिंक ऑफ न्यू सेंटेंसेस, एंड यू कैन आल्सो यूज डिफरेंट काइंड ऑफ नाउन्स एंड वर्ब्स. Then you have 5 sentences about Russia in Russian language. Then रशिया के बारे में आप लोग सबने पढ़ा ही है, हमारे इसमें SLM में भी इसमें दिया हुआ है. तो Russia, Российская Федерация is the official name. Очень большая страна, даже самая большая страна в мире. So it's a very big nation, perhaps it's the biggest in the world, है ना, самая большая в мире, in the world. स्टोलित्सा России, मॉस्को, मतलब कि रशिया की जो कैपिटल है वो मॉस्को है. ठीक है. उसके बाद क्लीमत रसी холодная, द क्लाइमेट ऑफ रशिया इज कोल्ड. बाकी उसकी कितनी पॉपुलेशन है, सब इन चीजों में ना पढ़ के आप 5 सेंटेंसेस बहुत सिंपल बनाइए. कुल्तूरा रसी ओचिन बगाता, द कल्चर ऑफ रशिया इज वेरी रिच. और इसी तरीके से आप और भी कुछ सोच के सिंपल सेंटेंसेस बनाइए, और 5 सेंटेंसेस लिखने से आपको. 5th है राइट अ ब्रीफ नोट अबाउट मॉस्को इन रशियन लैंग्वेज. मॉस्को में एक पूरा का पूरा टेक्स्ट हमने दिया हुआ है आपको, और उसके बारे में आप SLM में देख लीजिए, वहाँ से भी आप देख के समझ के लिख सकते हैं. अदरवाइज आप इंटरनेट पे भी थोड़ा सा ढूंढेंगे, मिल जाएगा. और सिंपल सेंटेंसेस बनाइए. गूगल ट्रांसलेट मत कीजिए, बिकॉज कई बार सही होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बार ऐसा होता है कि वो मशीन ट्रांसलेशन होती है, इससे गलत होता है. क्योंकि वो कल्चरल एस्पेक्ट नहीं समझता है, जेंडर का एस्पेक्ट नहीं समझता है मशीन, और वो गलत ट्रांसलेट कर देता है. तो उसको आप आराम से कर सकते हैं. तो पहले क्वेश्चन में किसी को कोई सवाल पूछना है कि नहीं समझ में आया हो? Anybody would like to ask me any question? हाँ अंकुर पूछिए. Yes, sir, Ankur here, sir. Sir, like the first question in which it is said, like brief note on the origin of Russian language. So this is basically in English only, right? English only. Okay. And rest all is in Russian. Okay, sir. So the second question, answer the following question. Write the meaning of the following words in Russian. House, table, country, city, dictionary. अभी रिसेंटली हमने एक डिक्शनरी भी आप लोगों को सर्कुलेट किया है आपके ग्रुप में, वहाँ से भी आप दे सकते हैं. और जो सिंपल 1 वर्ड होते हैं, इसको आप गूगल पे भी देखेंगे तो भी मिल जाएगा आपको. लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लोग डिक्शनरी में जरूर देखें इसको पहले. ठीक है. तो बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है. इट वुड टेक हार्डली 10 to 15 minutes to find out from the dictionary. ठीक है. So second question, part A is all right. Part 2, that is B, write the meaning of the following words in English. After, Pevitz, Yazik, Kniga, Quag. So it's not difficult either. It is also available because the dictionary is Russian, English, English, Russian. You can find out from there. Then the third question is translate the following sentences into Russian. So hello is привет.
Hello you can also write as Zdravstvuyte. ठीक है, my name is Arun, меня зовут Arun, I am a student. अरुण है तो मैस्कुलिन जेंडर वर्ड है ना, नाउन तो मैस्कुलिन जेंडर है, अरुण लड़कों का नाम होता है, इसलिए या स्टूडेंट। मान लीजिए अरुण की जगह अरुणा होता तो या स्टूडेंट का आपको करना पड़ता। ये नुआंस है रशियन लैंग्वेज का, इसको समझना जरूरी है जब ट्रांसलेशन आप करेंगे। आई लिव इन दिल्ली, या живу в Delhi. Delhi is the capital of India. Delhi stolica India. I love India. अब आई लव इंडिया को कोई बता सकता है मुझे क्या बोलेंगे रशियन में हम लोग? या लुब्लू इंजी। या लुब्लू इंजी। और कोई बता सकता है? या लुब्लू इंजियो। या लुब्लू इंजियो। ठीक है महेश, because विनीचिल्नी पद्येश when we use the verb lubich, the question is kago and chivo. So the rule of the grammar is anything which is of feminine gender, that is India, Moscow, Russia, कोई भी ऐसा noun जो feminine gender है which ends with I and ya should be u and you. Moscow होता Yes. तो या लुब्लू मस्को, रसिया होता तो या लुब्लू रसियो, और क्योंकि इंजिया है तो या लुब्लू इंजियो। इंजियो। ठीक है, इसका ये ग्रामर है, इसका ध्यान रखना है आपको। अब Okay. इसी को ट्रांसलेट करेंगे गूगल पे तो या लुब्लू इंजी आ जाएगा या इंडिया ही आ जाएगा, उसमें इंजियो नहीं होगा, ग्रामर क्योंकि फॉलो ही नहीं करता है मशीन, तो इसको ध्यान देना आप लोगों को। ठीक है, Okay. ओके, सो थर्ड इज ऑल राइट। नाउ लेट्स गो टू द फोर्थ वन। ट्रांसलेट द फॉलोइंग टेक्स्ट इनटू इंग्लिश। जब भी कोई टेक्स्ट हमें ट्रांसलेट करना है, आवर स्ट्रैटेजी इज टू लुक एट द वर्ड्स फर्स्ट, ग्रामर को नहीं देखना है। सबसे पहले उनके नाउन्स को, उनको हमें पता भी है मीनिंग की नहीं। आंतोन, आंतोन का एक नाम है। मस्कोविच मतलब मॉस्कोवाइट। Yivo Radicili тоже живут в Москве. Radicili means parents. Тоже means also. Живут в Москве. Москва, Москве means in Moscow. So, жить, живут, они. So, Yivo Radicili, his parents, тоже живут в Москве, also live in Moscow. Why? Why also? Because Anton is a Moscowite. And who is a Moscowite? Someone who lives in Moscow. ठीक है, उसके बाद Сейчас Антон работает в Московском университете на математическом факультете. Антон сейчас मतलब अभी, right now, at present, сейчас Антон работает в Московском университете на математическом факультете. Anton is working in the Moscow University's mathematics faculty या department. Он преподаватель. He is a faculty, or he is a faculty, what do you say? He is a professor, he is a teacher. So you can translate like that. Anton хорошо знает английский язык. So Anton knows very well English language. So Anton knows English language very well. Его папа инженер. His father is an engineer. И работает на химическом заводе в Москве and works in the chemical factory or chemical plant in Moscow. फैब्रिका जो होता है वो होता है फैक्ट्री, लेकिन जावोद जो होता है वो प्लांट होता है। लेकिन ट्रांसलेशन जब आप करना चाहते हैं तो केमिकल फैक्ट्री हम लोग नॉर्मली बोलते हैं इंग्लिश में। तो अगर आप मान लीजिए लिख भी देते हैं केमिकल फैक्ट्री तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, इट्स एब्सोल्युटली ऑलराइट। Его мама учительница, his mother is a teacher. учительница कौन होता है? जो स्कूल में टीचर होते हैं। और преподавательница वो जो यूनिवर्सिटी में टीचर है। ये बेसिक फर्क है преподаватель और учитель. Учитель, someone who teaches in school, a male teacher. Учительница is a female teacher who teaches in a school. преподаватель, преподавательница, someone who teaches in a university. Она работает в Московской городской школе. So she works where? ये प्रपोजिशन के इसका है सेंटेंस, где Московской городской школе, in the Moscow State
या मॉस्को सिटी स्कूल. So Moscow City School, Garadskoye Shkole, from the word Gorod, Garadskoye, क्योंकि स्कूल है तो शकोला, गरत्स्का है शकोला, उसको ही हमने प्रपोजिशन में चेंज किया है. रबोता के बाद में वह है, which means it's a preposition case. So she works in the Moscow City School. Его жена Наташа раньше жила в Калининграде. Его жена मतलब वाइफ, और इसका अपोजिट क्या होता है जिना का, कोई बता सकता है? What is the opposite of जिना? मूज मतलब husband. So его жена Natasha раньше жила в Калининграде. His wife раньше means earlier, lived in. Why lived in? Because жила, past tense of жить. For feminine it is жила. Kaliningrad is the name of a city in Russia. Ее родители. किसके लिए यूज हो रहा है? नताशा के लिए, ईयो. और जब आंतोन के लिए यूज कर रहे थे तो पर्सनल प्रोनाउन क्या था? वो, ईयो मतलब इसके, आंतोन के, और अब नताशा के माता पिता. ईयो रजिचिली इसिचस जिवुताम. इसिचस जिवुताम मतलब ये एक एक्सप्रेशन है रशियन में, इसिचस जिवुताम, ये अभी भी वहीं रहते हैं. They still live there. Они уже не работают. They don't work anymore now. Они уже не работают. Они на пенсии. They are on pension. ठीक है? इसमें क्लियर है आपको सबको? कोई सवाल पूछना है किसी को? सर पेंसी, हाँ, वो उसको रिटायर्ड बोल सकते हैं क्या? पेंशन होल्डर बोलना पड़ेगा? नहीं ना, पेंसी एक्चुअली वहाँ क्या है कि सभी को पेंशन मिलता है. हमारे यहाँ तो सबको पेंशन मिलता नहीं है, तो वहाँ पे तो लोगों ने कल्चरली रिटायर्ड को बोल दिया है ना पेंसी, पेंशनर मतलब पेंशनर. So I will write pensioner. So they Okay, are sir. pensioners. Plural है, plural pensioners. Pensioners, sir, both. Yes. ठीक है सर. उसके बाद और किसी को कोई सवाल पूछना है? हम लोग अब 002 पे चले असाइनमेंट. कोई और अगर कुछ पूछना चाहता है तो पूछ लीजिए. अदरवाइज नाउ आई एम ओपनिंग पेज 2, ORUL 002. Now let's look at the question number 1. ORUL 002 assignment. Question number 1. Answer the following questions. First, how many letters are there in the Russian alphabet and how are they pronounced? Give one example for each letter. कई लोगों को ऐसा लगा कंस्ट्रक्शन इस तरीके की ये क्वेश्चंस की कि ये रिपीटेटिव है, एक ही सवाल बार बार क्यों पूछ रहे हैं? सबको पता है 33 लेटर्स हैं रशियन अल्फाबेट में, तो ये दोनों असाइनमेंट्स में एक ही चीज क्यों पूछी गई है? उसका पर्पस ये है, एक तो पहले आपको पता ही होना चाहिए कि कितने लेटर्स हैं, लिखा कैसे जाता है, उनका एक एक एग्जाम्पल देना है. अगर समय है आप लोगों के पास तो एक एक आपको सेंटेंस भी लिखना है. सेकेंड पार्ट में ORUL 002 में पर्पस ये है कि अब मैंने ये पूछा है कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन रशियन अल्फाबेट एंड हाउ दे आर प्रोनाउंस्ड. अभी तक तो आप क्या लिख रहे थे कि आपने लेटर लिखा, उसकी प्रोनाउंसिएशन की टेक्निक नहीं लिखी. जैसे मुझे मान लीजिए लिखना है लेटर स, अब मैं आपको कैसे बताऊंगा कि ये स किस तरीके से प्रोनाउंस होता? लिख तो दूंगा मैं. प्रोनाउंसिएशन के लिए मुझे टेक्निक जो करनी पड़ेगी उसे हम लोग ट्रांसलिटरेशन बोलते हैं. तो स कैन बी रिटन एज TNS. स, जैसे हिंदी में आधा त और स, ये आपको लिखना पड़ेगा उसमें, जिससे कि आप समझा पाए कि अगर मान लीजिए किसी इंसान को ये बोलना है और उसने रशियन तो पढ़ी नहीं है, रहा भी नहीं वहाँ, तो वो उसको उच्चारण करेगा कैसे? हाउ द पर्सन हु हैव नेवर स्टडीड रशियन और नेवर बीन टू रशिया, हाउ द पर्सन वुड pronounce the letter. So, if he's a Hindi speaker, he would use adha ta and sa.
Otherwise, with the help of English, we would say te for T and S. So, together, the T and S. So, half T and full S. So, I have to write it down in the transfer that the person who would evaluate would understand, the person who is writing the assignment actually knows how the pronunciation of sir can be done. So it is very, it is not very easy. It is not very, just like that, because you are attending the classes and you are reading some words and sentences, you know the pronunciation. No, as an expert, you have to find out the strategy that what is the closest combination of letters available in Hindi, available in English, because we are not going to other languages as of now. So with the help of these two, you can explain that how the letter S or letter Z or letter U, so these are very peculiar letters, and telling someone that how to write U, how would you do that? Because it's difficult. It's very difficult to make other people understand that sound. It took us also many weeks you to understand this letter. So think of something new. Think of combination of different letters, and then you can do that. Okay. So and then with the help of words, where we have used the nouns, the words, where we have used the particular letter. You can also think of something like that. Sir, one question, sir. Yeah. Sir, as it is written, K as K-A-H in English. So can I write down this one? Letter K of Russian. K-A-H. Letter K of Russian. Letter K. K. Of Russian, you mean? In Russian. Okay. K is not like K we have in Hindi. No. It's not like K in Hindi. It's not like K of English. Right. It's a combination. Right. K and K. These are two different. Right. Okay. So with the approximation KHA, like we have used in SLM. K. No, I'm saying, sir, K-A-H. K-A-H. K. Okay, that's also right. K-A-H. Okay. For example, in the word kniga, there is a word K or karandash. You also have word K. Or in the word cosmos, you also have the word K. All these K are in the beginning also, but the pronunciation of these words are absolutely different, isn't it? Right. Cosmos, karandash, kniga. So you have to find out the exact pronunciation of the letter. You can also think of more examples. Not only necessary that these karandash, kniga or cosmos. Okay, you can also look at the dictionary and think of something, because we are also given approximations in the some pronunciations are written in the booklets also, those study materials in English. So can I follow those things? You can follow, no doubt, no problem at all. But as a learner, you must also explore. Yeah. You can also think of contributing more into what is already existing. So if you have time, please explore. Otherwise, सोच रहा मैं गलत ना हो जाए बाद में. नहीं, गलत तो नहीं है, इतना तो आप समझ गए हैं इस चीज को. उतना लिख दीजिए पहला, उसके बाद में और समय हो तो लिखिए उसके बाद. समझ में तो आ गया है, लेकिन सोचते हैं कि लिखने का गलत ना हो जाए. नहीं. ठीक है, होने से हो जाएगा, 2-4 तो गलत हो ही सकता है.
हाँ हाँ, गलत होने का कोई उतना इशू नहीं है। गलत गलत सही तो सुधारेंगे। एब्सोल्युटली। थैंक यू सर। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर इन रशियन अल्फाबेट एंड हाउ दे आर प्रोनाउंस्ड। अभी मुझे लगता है कि रशियन अल्फाबेट का 33 लेटर भी अगर एकदम से किसी से पूछा जाए तो शायद वो एक बार में बता नहीं पाएगा पूरा का पूरा सीरियल वाइज बिना देखे। ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है क्योंकि नया लैंग्वेज भी है, नहीं पता होता है, और वॉवल और कॉन्सोनेंट अलग अलग पता करना उससे भी कठिन काम है ना। तो ये रिपीटिशन नहीं है, इसका पर्पस ये है कि आप लोगों को कम से कम अल्फाबेट में कितने लेटर हैं, उनमें से वॉवल और कॉन्सोनेंट कौन से हैं ये पता भी है कि नहीं। और क्योंकि उनके रोल अलग अलग होते हैं, वॉवल्स के रोल अलग होते हैं, कॉन्सोनेंट्स के रोल जो हैं वो अलग हैं, दोनों मिलके ही दोनों मिलके ही कोई भी जो है वर्ड बनाएंगे, तभी आप रशियन लैंग्वेज में वर्ड के बाद आप सेंटेंसेस बना पाएंगे। इसलिए इनका पता होना जरूरी है, ठीक है। तो इसको जरूर याद कीजिए, आप लोग समय मिले तो बिल्कुल इसको रट लीजिए अच्छे से, और एक एक एग्जाम्पल भी देना है। उसका थर्ड क्वेश्चन ये ऐसे ही है, वॉवेल के बारे में पूछा गया है, उसको भी आपको ऐसे जवाब देना है। पहले उसके बारे में पता करना है आपको कि वॉवेल्स कौन कौन से हैं, और उसके बाद में आपको उसका एक एक एग्जाम्पल करना है। फोर्थ क्वेश्चन है विच लैंग्वेज विच लैंग्वेज ग्रुप रशियन बिलोंग्स टू। अब इसमें एक्चुअली डिबेट भी बहुत है, लेकिन जो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है वो ये है कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है और स्लाविक लैंग्वेज है। स्लाविक लैंग्वेज में सिरिलिक स्क्रिप्ट है। उसके बाद से काफी डिफरेंट लेवल्स के ये पहले ओल्ड जो रशियन है उससे कई सारे लेटर्स हैं जो अब हम लोग नहीं यूज करते हैं। जो प्रेजेंट है वो लमनसफ जो था, जिसके नाम पे आपका मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसने एक मॉडर्न रशियन लैंग्वेज के स्क्रिप्ट तैयार किया। अब उस पे है, ये सारी चीज आपको लिखना पड़ेगा, और ये उसके बिगनिंग में दिया हुआ है हमने ऐसे करके। थोड़ा सा इंटरनेट पे भी पढ़िए इसके बारे में, और अगर आप लोगों के पास समय है तो कंपेयर कीजिए कि वर्जन्स को, थोड़ा सा इसको भी कर सकते हैं आप, डिफरेंट वर्जन्स को भी कंपेयर कर सकते हैं, तो उससे आपको हेल्प मिलेगा। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे कोई भी लिखता ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमने नहीं लिखा हुआ है, एसएलएम में तो कोई भी नहीं लिखता है। तो ओल्ड रशियन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे आप, और आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे। वो अगर एक दो पैराग्राफ उस पर आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। उसको जरूर ढूंढिएगा आप। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाई लर्निंग रशियन इज इम्पोर्टेंट टुडे। सो इट इज अप टू यू, not necessarily you have to say it is important, not necessarily, you can also disagree, okay. All right, so people who think that it is not important to learn Russian, rather Chinese is more important, so they can also say, but they have to justify why they think that learning Russian is not important to them, so they can write. Okay, so I will not cut the marks, I will give full marks, but it has to be justified. Question number 2, ठीक है, ये समझ में आया? फर्स्ट में किसी को कोई पूछना है सवाल? Anybody likes to ask any question about the part 1? पूछना किसी? क्या हुआ? आवाज एकदम वो हो गया है, क्या कहते हैं उसको, सन्नाटा, इंट्रो साइलेंस हो गया है। आप No, लोग sir, it's clear. We can move on. No question, sir. okay. Go ahead, sir. Go ahead, sir. ऐसा तो नहीं लॉगिन करके भाग गए सब? No, sir, not at all. ऐसा होता नहीं। It's all right. चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 2. तो रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड नरेट द टेक्स्ट इन योर ओन वर्ड्स इन रशियन। इस पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें से सेम टू सेम आपको करना है, प्लॉट सेम रहना चाहिए, नाउन्स आप अलग चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली हमें वोल्गोग्राद के बारे में बात करना है। वी कैन ऑल्सो राइट 5 sentences आउट ऑफ इट, नो प्रॉब्लम। यू कैन ऑल्सो राइट 50 sentences अबाउट इट। तो वोल्गोग्राद очень большой, красивый город. Этот город находится на юге России.
Сегодня я хочу вам рассказать об городе, который находится на юге России. город называется Волгоград. ये हो गया एक सेंटेंस, उल्टा कर दिया हमने इसको। हमने शुरुआत करी कि आज मैं आपको एक शहर के बारे में बताना चाहता हूँ जो साउथ में, रशिया के साउथ में सिचुएटेड है। इसका नाम वोल्गाग्राद है। तो ऐसे आप थोड़ा सा सोचेंगे तो बना लेंगे, ठीक है। Мой друг Иван живет в Волгограде. Он студент. Раньше его родители тоже жили в Москве. У моего друга, которого सिंपल भी बना सकते हैं, мой друг Иван живет в Волгограде. Раньше его родители тоже жили в Москве. Он студент. आप थोड़ा सा इंटरचेंज कर सकते हैं इसको। और अगर आप चाहें तो इवान की जगह आप आन्ना यूज कर सकते हैं। माया पदरूगा करना पड़ेगा आपको उसे, ठीक है। तो नाउन्स की एंडिंग्स, जेंडर्स, इस सब के बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हुए यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन टेक्स्ट, ठीक है। तो देयर इज नो प्रॉब्लम। मेन चीज है कि वो चीज वही रहनी चाहिए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वोल्गाग्राद के बारे में। और एक किसी फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं। फ्रेंड कैन बी मेल और फीमेल, ठीक है। वो आप चेंज कर सकते हैं, प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं। ये वो पापा आंतोन निकोलाएविच व्राज आप कर सकते हैं। ये वो पापा आंतोन निकोलाएविच इंजीनियर, ठीक है, या चिनोवनिक। लेकिन चिनोवनिक रबोटेट बलनित्सा में तो काम नहीं करता है। जो क्लर्क होता है उस तरीके का, जो ऑफिस गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, ये वर्क्स इन द ऑफिस और मिनिस्ट्री। तो यू हैव टू यूज दैट वर्ड ऑन रबोटेट, वो ऑफिस से। और प्रपदावाच्य होता तो यूनिवर्सिटी। इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा और उसके साथ में आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या लिखा, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड नरेट द टेक्स्ट इन योर ओन वर्ड्स इन रशियन। ये अपने खुद के आप वर्ड्स को सोच सकते हैं और उसको फिर आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, read the following text and narrate the text in your own words in Russian। ये टेक्स्ट एक्चुअली हमने सीधा का सीधा जो है अपने SLM से ही लिया है। इसको आप देख सकते हैं इसमें, और हमारी जो प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स हैं उसमें भी अवेलेबल है। इसको हमने डिस्कस भी किया है। अपने वर्ड्स में आपको बोलना है। तो जैसे काशदाय वस्क्रिसेनिये येस्ली पगोदा खारोशा मी खोजिन ससेदनी लेस, ये कह रहा है कि हर संडे को अगर मौसम अच्छा है तो हम लोग बगल के फॉरेस्ट में घूमने के लिए जाते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यही लिखना है। आप कह सकते हैं कि हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं, हम लोग मॉल घूमने जाते हैं, या हम अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं। तो इस तरीके की कंस्ट्रक्शंस आप कर सकते हैं। खासतः वस्त्र से नहीं आप रख सकते हैं क्योंकि ये बेसिकली हॉलीडे की बात हो रही है, तो उसी को रखिए आप। बाकी चीज़ें चेंज कर सकते हैं हम। जैसे ये इसलिए पगोदा खरोशा है, तो अगर संडे है, अब अगर मौसम अच्छा है या नहीं अच्छा है उससे हमें क्या करना है। अगर हमें मॉल जाना है तो ठीक है, गर्मी है सर्दी है डजंट मैटर, वी आर गोइंग टू द मॉल। तो इट इज़ फिक्स्ड कि आप किस तरीके से नरेट करना चाहते हैं। फिर आप कहते हैं एतत लेस ओचिन क्रसीवी बल्शोई गुस्तोई। तो आप अगर वो कहना चाहते हैं कि एतत सुपरमार्केट ओचिन क्रसीवी बल्शोई, तो उसमें गुस्तोई तो यूज नहीं होगा बिकॉज डेंस होता है ना, गुस्तोई फॉरेस्ट के लिए होता है। तो उसमें आप दूसरा कोई वर्ड यूज कर सकते हैं जो कि उसको डिफाइन करता है। फिर इसी तरीके से आप और आगे इसमें बना सकते हैं कि वहाँ पे थिएटर है, वहाँ पे लाउंज है, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं, आराम करते हैं, घर का सामान खरीदते हैं, कुछ और लेना है, उस तरीके की चीज़ें यू कैन डिस्कस। तो जिस तरीके से भी आप चाहते हैं, जो भी अगर प्लॉट है बेसिकली, तो आप संडे के बारे में बात कर रहे हो, संडे को आप क्या क्या करते हैं उस तरीके से आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड नरेट द टेक्स्ट इन योर ओन वर्ड्स इन रशियन। तो एक सिंपल रास्ता यही है कि बिल्कुल यही टेक्स्ट है और इसी को आपने नरेट कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, पीपल हु लाइक टू ट्राई दैट they know some of the simple sentences in Russian, they know some of the rules of the grammar, and they can imagine, they can think, and they can write। तो अगर उस तरीके का आपका मिजाज है तो आप लिख सकते हैं। अदरवाइज बाकी लोग जो हमने पहले बताया वैसे करिए, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। मार्क्स के बारे में चिंता मत कीजिएगा, जो जितना क्रिएटिवली लिखेंगे मार्क्स उतने ज़्यादा ही मिलेंगे उनको। द फोर्थ वन इज रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड नरेट the text in your own words in Russian।
Nastayaše vreme nikto ne piše pisma, ये भी हमने अपने SLM से लिया है, उसको भी आप देख सकते हैं. Nastayaše vreme nikto ne piše pisma. Nastayaše vreme मतलब present time या present tense basically, but present time. In the present time nobody writes letters, क्योंकि सब लोग अब तो ईमेल करते हैं, फोन कॉल करते हैं. वही कह रहा है Ljudi ili zvonят ili общаются через интернет. अब इसमें कह सकते हैं आप настоящее время никто не пишет письма, потому что сейчас люди любят звонить или они общаются через интернет. क्योंकि अभी अब हमने इसमें एक ही सेंटेंस बना दिया दो की जगह потому что यूज करके. потому что मीन्स बिकॉज. तो आप ये जो छोटे कंजंक्शंस हैं इसको भी यूज कर सकते हैं. तो आप इसको भी ट्राई कीजिए कंजंक्शंस की मदद से. दो सेंटेंसेस को जोड़ दीजिए, एक सेंटेंस बना सकते हैं. Вчера я получил одно интересное письмо. Когда почтовым принес письмо, и я увидел почерк на конверт, я сразу понял, что оно от Ашока. तो अनो जो है वो है पिस्मो के लिए न्यूट्रल जेंडर, और अशोका फ्रॉम अशोक फ्रेंड. तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं. अशोक की जगह रमेश, अत महेश. तो इस तरीके से नाम चेंज हो जाएगा और आप इसको लिख सकते हैं. और आप चेंज कर सकते हैं. मान लीजिए आप इंडिया में हैं, आपको लेटर रिसीव होता है मॉस्को से, तो अगर साशा है, साशा अलेक्जेंडर का शॉर्ट नेम होता है. मतीलाल जी, हाँ, साशा जो है वो अलेक्जेंडर का ही शॉर्ट नेम है. मैंने शायद आपका होमवर्क देखा, आपका होमवर्क में शायद आपने वो अभी कुछ किया है. अभी आपका होमवर्क आपने जो सबमिट किया था, ठीक है. यस सर. तो अत साशा है तो अत साशी हो जाएगा. आन्ना है तो अत आन्नी हो जाएगा, है ना. तो इस तरीके से उसका फॉलो करना है. तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसको रिवर्स कर सकते हैं स्टोरी को, कि आप रशियन, आप मतलब एक इंडियन हैं और आपको रशिया से रिसीव होता है लेटर, मान लीजिए. इस तरीके से भी लिख सकते हैं. तो थोड़ा सा क्रिएटिवली सोचना है और इसको लिख सकते हैं. अदरवाइज जैसा लिखा है वैसा ही आप 4-5 लाइन में 6 लाइन में इसको कर सकते हैं. चलिए, तो ये आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो गया. किसी को कोई सवाल पूछना है कि कुछ टफ लग रहा हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तो फिर हम लोग प्रोजेक्ट पे चलेंगे. You can answer no, everything is all right, we can go ahead, or you can say yes, I have to, or we have to ask. Yes sir, you can go ahead from me. So here we have opened the project. So assignment जो है वो actually total जो program है उसके continuous assessment का part है. continuous assessment से मतलब क्या है कि हम ये देखते हैं कि आप होमवर्क जमा कर रहे हैं कि नहीं, क्लास अटेंड कर रहे हैं कि नहीं, जवाब दे रहे हैं कि नहीं, क्लास में पूछा जाए कुछ तो, और असाइनमेंट्स अटेम्प्ट कर रहे हैं कि नहीं. अब क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन का जो होल सोल पर्पस है वो ये है टू एम्पावर पीपल हु ड्यू टू सम और अदर रीजन कुड नॉट गो टू द क्लासरूम of the institutions who require your presence in the stipulated time. Distance learning and online education actually gives you flexibility so that even if someone due to some or other reason is not able to attend the classes, it should not be impacted or have an impact on their result, on their marks. So that is why to have something tangible with us, because suppose if I say that many people who are not attending classes, they should be given 0. Many people who are attending the classes but not submitting the homework should be given 0. Or many people who are attending the classes and submitting the homework but not engaging in discussions should be given 0. No.
So the reason is that for the sake of some tangibility, we require assignment, so that on the basis of your assignment, we can give you marks, which is 30% of the total. So this is the main purpose of the assignment, and it do not have any credit weightage because it is the part of continuous assessment. So the program is of 20 credits, 8 credits for the ORU 001, 8 credits for the ORUL 002, 16 credits. That is why assignment 1 and 2. And then besides that, we have 4 credit project. The purpose of project is that because UGC said that the program should be of 20 credits, and in open and distance learning, we run only 16 credits program. So either we were left with the 16 credit without recognition from the UGC, or run a 20 credit program with the UGC recognition, but we have to follow some rules. So we thought of introducing 4 credit project. So this project which you are going to attempt is 4 credit, and it is separate than the assignment, separate than the term and examination which you are going to appear, will be conducted by NTA, and separate project will be evaluated. So you have to pass the assignment simultaneously, term and examination and project, 35, 35, 35% in all 3 of them in order to take the certificate. ठीक है, clear है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब इसमें जो है प्रोजेक्ट में हम देखते हैं कि इसमें जो क्वेश्चंस हमने रखे हैं उसमें से कई क्वेश्चंस ऐसे लगेंगे आपको कि हाँ रिपीटिशन है, और रिपीटिशन इसलिए भी है क्योंकि जो बिगिनर्स लेवल रशियन है उसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है? तो आपने असाइनमेंट में भी ये क्वेश्चन देखा, राइट ऑल 33 लेटर्स ऑफ द रशियन अल्फाबेट इन करेक्ट ऑर्डर अलोंग विद वन सेंटेंस ईच फॉर एवरी लेटर। इसको हमने थोड़ा सा इलाबोरेट यहाँ कर दिया क्योंकि हमने अभी असाइनमेंट में आपसे सिर्फ एक नाउन, एक वर्ड पूछा, सेंटेंस बनाने के लिए नहीं बोला, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पे कैटेगोरिकली हमने कहा है कि सेंटेंस बनाना ही है आपको, इट इज मैंडेटरी। सो यू हैव टू राइट ऑल 33 लेटर्स, पुट अ नाउन, use that noun in a sentence. Okay, for example, out of 33 letters, let's take kniga from the letter k. Kniga eta maya kniga or eta ochin inchres maya kniga. So these kind of sentences you can make. Question number 2. Write 5 words each of masculine, feminine, neuter gender. Make one sentence each every word. It actually means that you have to separate 5 different words for masculine, for feminine, for neuter first. Then use them along with an adjective, verb, make a sentence. You can think of brat in masculine, eta moi starshi brat, feminine, sistra, eta maya malatshaya sistra, maya malatshaya sistra ochin dobraya, ये भी एक सेंटेंस है। maya malatshaya sistra ochin dobraya मतलब क्या होगा इसका? my younger sister is very kind. Neuter gender pismo या paluchil pismo at maivo lubimava druga ashoka. I got this letter from my favorite friend or my best friend अशोक। इस तरीके से अभी आपने देखा पीछे हमने एक दिया था, उसमें ये कंस्ट्रक्शन यूज किया था हमने, थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया लुबीमी ध्रुव। वैसे ही आप कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो आपके पास 3 सेंटेंस हो गए इनके। ऐसे डिक्शनरी में आप खोजेंगे या SLM में खोजेंगे तो आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, लेकिन जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो थोड़ा क्रिएटिवली बनाइए, और सेंटेंस वही बनाइए जिसका ग्रामर आपको पता हो। अगर ग्रामर नहीं पता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे या लुब्लियू रसियू होगा, या लुब्लियू मस्कू होगा, या लुब्लियू इंजियो होगा, ठीक है? लेकिन या लुब्लियू कानपुर होगा, या लुब्लियू हैदराबाद होगा, या लुब्लियू चेन्नई होगा, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि मैस्कुलिन जेंडर है ना, ठीक है?
तो इसको आप ध्यान रखिएगा बनाते हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी केसेस आर देयर इन रशियन अल्फाबेट। अच्छा, इसमें मतीलाल जी ने शायद बताया था मुझे, हाउ मेनी केसेस आर देयर इन रशियन लैंग्वेज है। रशियन अल्फाबेट का अल्फाबेट काट दीजिएगा आप लोग, उसको इग्नोर करेंगे और सिर्फ माने हाउ मेनी केसेस आर देयर इन द रशियन लैंग्वेज। So all of us know there are 6 cases: nominative, preposition, then you have accusative, dative, genitive, and instrumental case. So you write down all these 6 cases. Write down their Russian as imenichilny, predložny, vinichilny, dachilny, then rajichilny, and tvarichilny, and cases are known as pajesh. उसके बाद write 2 sentences having grammar aspect of each case. When we talk about grammar aspect, we have nominative case sto and kto. So I have to write like that: sto eta stol, kto eta drug, sto eta stool, kto eta प्रपदावाचल। तो आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। प्रदलोषणी पदयेश में आपको मान लीजिए सेंटेंस बनाना है, गिजे नाखोजित्सा शकोला नाखोजित्सा सेंट्रे गोरागा, अकोम भी दूमई से या दूमयू अद्रुगे। इस तरीके से आप प्रदलोषणी में सेंटेंसेस बनाएंगे। और ऐसे और भी आप दाचिलनी है, आपका मिनी चिलनी है, गजी चिलनी है, परी चिलनी है, उसमें भी आप सेंटेंसेस बनाइए। और हमने कवर तो किया ही है और उसको आप यूज करिए, ठीक है। So we have to write down the sentences in Russian. Exactly, Russian. Okay, Write 2 sentences having grammar aspect of each case in Russian. Okay. Then the question number 4, write 5 sentences using verbs of motion. अब verbs of motion में हमने किया है इच्छी, खजीज, येखज एंड येसजीज। 4 बेसिक verbs हमने किए हैं। इच्छी to go on foot, one direction, खजीज to go on foot, multi direction or repetition. Yekhaj also means to go by transport, one direction, and yezjik means to go by transport, multi direction or repetitive. इसमें आपको 5 sentences बनाने हैं। Try to use all these 4 verbs. Okay, या часто езжу в Москву. I often go to Moscow. Моя сестра едет. Мои родители ездили. Мои друзья пришли к нам вчера ночью. That my friends came to me last night. इस तरीके से आप sentences बना सकते हैं। Past tense में भी बना सकते हैं, present में भी बना सकते हैं, और बूजेत का भी यूज कर सकते हैं जो आपका फ्यूचर टेंस है। That या बुदू येखज फ्रासियू सिंचवरे, I will go to Moscow or to Russia in September. ये भी बना सकते हैं ना, या बुदू I will, या बुदू येखज I will go। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाइए। 5 वर्ब्स ऑफ मोशंस को यूज कीजिए, थोड़ा क्रिएटिवली करिए, और पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस तीनों को यूज कीजिए, ठीक है। कोई सवाल पूछना है वर्ब्स ऑफ मोशन पे किसी को? No, sir. ओके। तो 5वां हमारा क्वेश्चन है, राइट अबाउट अ सिटी फ्रॉम योर रीजन इन रशियन लैंग्वेज। इसका बेसिक पर्पस ये था जिससे कि कॉपी कम से कम हो, कि लोग एक ही चीज के बारे में ना लिखते, इसलिए मैंने फ्रॉम योर रीजन लिखा। जैसे कि आप अगर वेस्ट बंगाल से हैं तो कलकत्ता के बारे में लिखेंगे, कोई जरूरी नहीं है कलकत्ता के बारे में लिखें, आप और भी जो सिटीज हैं वेस्ट बंगाल में उसके बारे में लिख सकते हैं। कोई हैदराबाद से है, कोई चेन्नई से है, कोई शिमला से है, कोई दिल्ली से है, तो सभी लोग अपनी अपनी सिटी के बारे में लिखेंगे और करीब 250 वर्ड्स यूज करने हैं। क्ल्यू के लिए आपके पास मॉस्को पे हमने एक टेक्स्ट किया है, उसमें आप कंस्ट्रक्शंस देख लेंगे कि किस तरीके के वर्ड्स, किस तरीके के सेंटेंसेस हैं, और उसको अडॉप्ट करेंगे आप अपने सिटी के हिसाब से। मान लीजिए उसमें लिखा है कि बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं वहाँ पे, बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, और
मान लीजिए कि मेट्रो चलती है जमीन के अंदर, या वहाँ पे बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, स्टेडियम है, ये है वो है, तो उस तरीके की चीजें अगर कोई छोटा शहर है मान लीजिए वहाँ पे नहीं है, तो वो उसको अपने हिसाब से यूज करेगा और वो वहाँ पे लिखेगा कि हमारे तो यहाँ पे जो है छोटे छोटे पहाड़ हैं, झरने हैं, रोड्स बहुत चौड़ी नहीं है, पतली रोड्स हैं, हमारे यहाँ पे स्टेडियम नहीं है। इस तरीके की कंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। और जो आपका वहाँ पे मेन फीचर है, जैसे मान लीजिए कि कोई केरला में है, LAP में है, वो वहाँ पे रिवर के बारे में लिखेगा, कोई वहाँ पे शिमला में है तो वो बर्फ के पहाड़ों के बारे में लिखेगा, वो उसका USP है ना उसके शहर का, तो उसके बारे में सोच के आपको लिखना होगा। तो उसको सेंटेंसेस को आप उसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। मेन पर्पस ये है जिससे कि आप अपने शहर को, अगर मान लीजिए किसी से आपकी बात होती है रशियन से और आपको उसको डिस्क्राइब करना है कि या खचूम रस्कजाज आसवयम गोरजे, कि मैं आपको अपने शहर के बारे में बताना चाहता हूँ या गांव के बारे में बताना चाहता हूँ, तो आपके पास वोकेबलरी तो होनी चाहिए, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए है ये, ठीक है। तो इसको आप लोग प्लीज ऐसे कीजिएगा, पहले प्रैक्टिस कीजिएगा, सोचिएगा कि अगर मुझे हिंदी में, इंग्लिश में, बांग्ला में या तमिल में या तेलुगु में किसी को समझाना है तो मैं क्या बोलूँगा, उसके बाद मैं उसको इंग्लिश में या रशियन में अगर मुझे बोलना है तो मुझे सेंटेंस अब कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। तो आपका जो ओरिजिनल लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है, उसमें पहले सोचिए, लिख लीजिए किसी पेपर पे 4, 5, 10 सेंटेंसेस, देन ट्राई टू ट्रांसलेट इट, ठीक है। I hope it's clear to everyone now. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now project ka second part, ORUL 002. The first question is, what is devoicing of consonants? Give 5 examples. So devoicing of consonants is something in which the consonant's original pronunciation is gone. Like kleb, when we write kleb, we write kh, l, ye and be. Be. So be is devoiced. In place of be, the sound of pe comes. Pe. Klep. P. Klep. एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, क्लेप, क्लेप, हम लोग उसको लिखेंगे क्लेप, फिर जो बै है उसके ऊपर हम ब्रैकेट खींचेंगे, उसके ऊपर लिखेंगे पै, और उसको फिर अपने हिंदी या इंग्लिश में लिखेंगे कि ये फर्क हो गया कि नॉर्मली जब हम लिखते हैं तो क्लेप लिखते हैं, बट द प्रोनाउंसिएशन जब होता है तो क्लेप होता है। इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द डिवाइसिंग ऑफ द कॉन्सोनेंट एंड बै इज अ कॉन्सोनेंट, क्लेप। वैसे ही अशीब का, अशीब का जब हम लोग लिखते हैं तो लिखते हैं अशीब, अशीब का, लेकिन जब सुनते हैं उसको और बोलते हैं तो अशीब पै, अशीब का, अशीब का, पै की साउंड आती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स उसमें SLM पे दिए हुए हैं, उसको देखिए ध्यान से और लिखिए। थोड़ा सा अगर आपके पास समय हो तो इंटरनेट पे सर्च कीजिए व्हाट इज डिवाइसिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन रशियन लैंग्वेज, यू कैन आल्सो गेट अ क्लू आउट ऑफ इट एंड देन राइट। So for examples, shall we write the words only? For yes example, yes words, yeah words only or words. I will mark what it will be. Say Gafar ka, Zafar sa, Wafar का, इस तरह no no only उसको words. मार्क कर देंगे। हाँ उसको मार्क करना है, अगर आप क्योंकि उस वर्ड, किसी भी वर्ड में डिवॉइसिंग पता चलेगी, सेंटेंस में डिवॉइसिंग नहीं होती है, वर्ड नहीं होती है। वर्ड में तो आप सेंटेंस लिख रहे हैं तो उस वर्ड को अंडरलाइन करके उसको डिफाइन करेंगे। नहीं सर, वर्ड से लिखेंगे। ठीक है, ओके सर। सेकंड क्वेश्चन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग टेक्स्ट। अब इसको हमने ट्रांसलेट करने के लिए कहा है, नरेट करने के लिए नहीं कहा है, ठीक है। तो इसका आप लोगों को ध्यान देना है कि भाई इसमें अब इमेजिनेशन नहीं लगाना है। ये बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? राइट सर। प्रोफेशनली जो ट्रांसलेटर्स sir. होते हैं, प्रोफेशनली जो ट्रांसलेटर्स होते हैं, देयर जॉब इज टू ट्रांसलेट इट, 10 लोग ना, मतलब लिटरल ट्रांसलेशन। और जो ऑथर होते हैं उनका काम होता है, जिनको लैंग्वेज आती है, दे कैन यूज इमेजिनेशन एंड देन दे कैन डिस्क्राइब, दे कैन narrate, they can interpret. So this is the basic difference between a translator and an author. Okay, so in this case, in question number 2, you are expected to translate the text, that's it.
So don't use your imagination, don't change anything. Everything remains. Only translation should be done. Poznakomcis это мой друг Сергей, он студент, Сергей любит спорт. और इसको जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे वैसे इसको ट्रांसलेट करते जाइए. Sir, what is the meaning of Poznakomcis? Poznakomcis मतलब let's introduce. Let's introduce. Это мой друг Сергей. This is my friend Sergey. Он студент. He is a student. Sergey любит спорт. Sergey loves sport. Каждый день рано утром он играет футбол. Every morning, early in the morning, he plays football. Вот его сестра Ира. His sister Ира. Она красивая девушка. She is a beautiful girl. Она хорошо знает английский язык. She knows English language very well. А это его мама Галина Николаевна. And this is her. And this is his mother Галина Николаевна. Она физик. She is a physicist. ठीक है. Утром она готовит завтрак. She prepares breakfast in the morning. Sergey и Галина Николаевна вместе завтракают. Sergey and Галина Николаевна eat breakfast together. Sergey любит, अब जैसे eat breakfast है तो इसको आप have breakfast भी लिख सकते हैं. इतना लिबर्टी मिलेगा आपको. ठीक है ना. Sergey и Галина Николаевна вместе завтракают. Sergey любит пить молоко, а его мама любит фрукты. Sergey loves to drink milk and his mother loves to have fruits. ठीक है. कर लेंगे ना इसको, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें. इसको करने में किसी को कोई परेशानी तो नहीं है. नो प्रॉब्लम सर. ठीक है. नेक्स्ट में चलते हैं कंजुगेशंस. कंजुगेशंस बेसिकली सिर्फ जब शुरुआत करते हैं हम लोग किसी भी लैंग्वेज में और कोई भी वर्ब होता है, खाना खाना, सोना, जागना, काम पे जाना, टीवी देखना, ये सब वर्ब्स हैं और सारे के सारे वर्ब्स प्रेजेंट टेंस में होते हैं. उसके बाद कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि हम इन वर्ब्स को प्रेजेंट टेंस में यूज कर रहे हैं या पास्ट टेंस में यूज कर रहे हैं या फ्यूचर टेंस में यूज करना चाहते हैं. तो ज़ाफ्तरकच मीन्स टू हैव ब्रेकफास्ट, इगराज मीन्स टू प्ले है ना, मतलब खेलना. पफ्तरियात मतलब रिपीट, टू रिपीट, दोहराना जिसे बोलते हैं. रबोतच मतलब काम करना, टू वर्क. ज़ाफ्तरकच और इगराज और रबोतच ये तीनों के तीनों एक ही तरीके से कॉन्जुगेट होंगे, या ज़ाफ्तरकयु या इगरायु या रबोतयु. ती ज़ाफ्तरकयश, ती इगरायश, ती रबोतयश. ओन अना ज़ाफ्तरकयत, ओन अना इगरायत, ओन अना रबोतयत. मुई ज़ाफ्तरकयम, मुई इगरायम, मी रबोतयम. वी ज़ाफ्तरकयचे, वी इगरायचे, वी रबोतयचे. आनी ज़ाफ्तरकयूत, आनी इगरायूत, आनी रबोतयूत. क्योंकि इनकी एंडिंग जैसी है, वो एक है, एक ही ग्रुप के हैं तीनों वर्ड्स, इसलिए कॉन्जुगेशन भी एक जैसी हुई. उसके बाद पास्ट टेंस में या ज़ाफ्तरकल, अगर कोई लड़की है तो या ज़ाफ्तरकला, और अगर प्लूरल है ज़ाफ्तरकली. इगराल, इगराला, इगराली. रबोतल, रबोतला, रबोतली. बस फर्क है आपका पफ्तरियाच में, या पफ्तरियाय, ती पफ्तरियायश, ओनना पफ्तरियाय, नी पफ्तरियायन, वी पफ्तरियायचे और अनि पफ्तरियायूत. क्योंकि इसमें एंडिंग में आप देखेंगे आ तय सॉफ्ट साइन की जगह क्या है, या तय और सॉफ्ट साइन. ठीक है. तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा फिर से और लिखिएगा जब उसको ध्यान से, तो कोई मुश्किल काम नहीं, बड़े आराम से कर लेंगे. जिनके पास ज़्यादा समय है पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में इसको कर सकते हैं. हमने आपसे जो मांगा है वो सिर्फ प्रेजेंट टेंस में मांगा है इसको, बाकी आप दोनों में इसको चेंज कर सकते हैं. चौथा क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. अफर्मेटिव और नेगेटिव का बेसिक फर्क होता है द और नियत का. फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव हम लोग नॉर्मली कब बनाते हैं, अफर्मेटिव में बोला अगर एता वाशारूच का, पहला सवाल मैंने पूछा क्या ये आपका पेन है, आपने जवाब दिया द एता मयारूच का.
कि हाँ ये मेरा पेन है। तो जब आप बोलते हैं द एता मया रुचका, इसका मतलब होता है कि आप अफर्मेटिव आंसर दे रहे हैं, यानी पॉजिटिव। जब आप कहते हैं नहीं ये मेरा पेन नहीं है, तो आप इसको नेगेटिव कहते हैं, नियत एता नी मया रुचका। अब आपको समझ में आ गया ये किस तरीके से हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। अब वैसे ही हमने कहा है उवासियस पदरूगा, दा उमनिया येस पदरूगा, नियत उमनिया नियत पदरूगी, पॉजिटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव। उवासियस नो विद्रूप, दा उमनिया येस नो विद्रूप, उमनिया नियत नोवावा द्रूगा, उवासियस krasnikarandаш, दा उमनिया येस krasnikarandаш, नियत उमनिया नियत krasnava karandasha, у вас есть старые газеты? Да, у меня есть старые газеты. Нет, у меня нет старых газет. ये ऐसे चेंज हो जाएगा। और थोड़ा सा इसको आप देखेंगे एसएलएम में और समझ जाएंगे। हालांकि अब मैंने सॉल्व कर ही दिया इसको, तो आप थोड़ा सा इसको सुन लेंगे रिकॉर्डिंग को, आपको मदद मिल जाएगी। 5वां क्वेश्चन है मॉस्को पे, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन का एक टेक्स्ट है, मॉस्को के बारे में आपको पढ़ना है और 5 क्वेश्चन आपको जवाब देने हैं। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है अच्छोम एतचेक्स अ मस्क्वे, अ गोरजे मस्क्वे, अ столица России Москва। तो इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। Где находится Красная площадь? कि जो रेड स्क्वायर है वो कहाँ पे है? द Красная площадь находится в центре Москвы, in the center of Moscow. Moskva का कोई गोरद, बल्शोई गोरद, जिल्योनी गोरद, सबरीमेनी गोरद, कि बड़ा शहर है, ग्रीन है, मॉडर्न है। सबरीमेनी मीन्स मॉडर्न या कंटेम्पररी। Что такое МГУ? ये मस्कोव्स्की गसुदार्ственный университет का сокращение है, एब्रीवेशन है। इसको ही आपको बड़ा करना है। МГУ это самый большой университет в Москве, который называется मस्कोव्स्की गसुदार्ственный университет। इसके बारे में 2-4 लाइन लिख सकते हैं आप, ठीक है। सामी क्रूपनी यूनिवर्सिटी, क्रूपनी मतलब बिगेस्ट, ग्रैंडेस्ट। उसके बाद 5वां है какие виды транспорта есть в Москве? तो कौन कौन से तरीके के ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है मॉस्को में? виды транспорта как метро, как такси, как троллейбус, автобус, поезд, इस तरीके की जो ट्रांसपोर्ट की बात इसमें हुई है वो आप लिख सकते हैं। यस, ठीक है। तो ये आपका असाइनमेंट और प्रोजेक्ट हो गया समाप्त, और आप लोग बड़े मजे से इसको कर सकते हैं। मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अब हम लोग फिर से फेसबुक लाइव पे मिलेंगे फ्राइडे को। ओके। और नेक्स्ट डे वो मॉक टेस्ट कुछ करा दीजिएगा। सैटरडे को करेंगे, सैटरडे को। हाँ, नेक्स्ट जो है, नॉट इन फेसबुक। All right. Okay. Thank you so much everyone for actively participating in this session. Now we have already covered our syllabus. We have also done our assignments and projects. We did also one mock test. Now as proposed, we will also be doing the next one in the upcoming Saturday. Till then, thank you very much and hope to see you soon on Saturday as well. Okay. Спасибо, sir. Спасибо вам огромное еще раз. Спасибо, sir. До свидания. До свидания. До свидания.